यस नहीं नहीं फिनिश नहीं करना Link. ये वाला शो है ना Yeah. क्लिक हो गई डन Yeah. यू रन नाउ अब आप अपने फेसबुक पे आइए जस्ट शेयर इट फ्रॉम देयर दैट्स इट का इदारा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कायस आपके तावन का तलबगार अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके बार्कले बैंक सोन कोड 201188 अकाउंट नंबर 5087 अगर आपने किसी को मैसेज करना देखने के लिए दिस वे दे कैन मैसेज कर सकते ओके Yeah. Sure. शेयर करके आप अपने फेसबुक पे चले Welfare जाएं Society charity dinner on Go on your 17th Facebook. June at 7 p.m. till 10:30 p.m. Live Arfana Sofiana Kalams by Tariq Seher. Venue Maitland Hall click there. Click on B82HF. अभी जो काम Tickets is 15 pounds per person. अब इस काम में जो आएंगे if you can't read there you can read it ठीक है To reserve your seat, call 07944808141. That's 07944808141. Limited seats available. Event supported by the British Kashmiri and Multicultural Society and Radio RE-Awaz. If your child is struggling with science, maths, and English and want to appear the 11 plus on GCSE exams, then ECM Tuition Center in Birmingham has been known for excellent results. We have highly qualified teachers who currently work in schools and tutor in their spare time. They do group and one-to-one tuitions face-to-face and online. Contact us on 07429060137 or send a message on Facebook, the ECM Tuition Center, the right one for your child. Umti Relief Foundation bringing Eid Bazaar, free family event on 24th June 2023 at 2 p.m. till 7 p.m. Come and enjoy desi food along with shopping. Venue 127 to 129 Highfield Hall Community Center B280HS. To book stall, call 0779172433. Event supported by Radio Aapki Awaaz. Love for Music presents Voice of Local Talent Saturday, 8 July 2023 at 6:30 p.m. till 11 p.m. Live performance by Bob Singh, Raj, Komal Asaria, Shivani Kumar, Mahek Sharma, Amit Kumar, and Ustad Qamar Ali Khan, and many others. Hosted by Moini Basra and Shivani Kumar of Radio Aapki Awaaz. Venue MIA Walsall WS1 1XA. Tickets £12. Refreshment provided. To book table or tickets, call 0786537275 or 0742906037 or 0794480841. Event supported by Triveni Media and Radio Aapki Awaaz. You are listening to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and on Radio Garden app, Hindi Radio online app, and Aapki Awaaz Radio Premium app. CMM presents Shamir Ghazal, Friday, 30th June 2023 at 6:30 p.m. live in Manchester. Performance by Zaid Ali and UK's well-known rising ghazal singer Basharat Beg. Tickets £20. Dinner will be served. Venue Pakistan Community Centre alongside
चाहिए ना, Manchester, आप put it on. postcode आपने सिर्फ and क्लिक करना, 124 put the PC up and that's it. Whenever you need a break, For click tickets, on, call click it. Farzana Afzal on 07474040 जब भी ब्रेक चाहिए ना, वो वाला ऊपर ये वाला नहीं, no. Event supported by ऊपर करो, Radio करो. आपकी आवाज. ठीक है, whenever you need a break. That's it. Stop for this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you doing? How was your week? And I hope that all enjoying the sunshine. It's cooling down a bit with a bit of a drizzle of a rain. I hope you're all well and you spending some quality time with friends and family. जैसा कि आपके मालूम है कि हमारा शो आज का जो होता है कम्युनिटी टॉक विद वन एंड ओनली अनीला असद, ये मुख्तलिफ ज़बानों में होता है, उर्दू, पंजाबी, थोड़ी सी पहाड़ी और इंग्लिश ज़बान में, क्योंकि रेडियो आपकी आवाज़ का जो मकसद है कि अपनी जो कम्युनिटी लैंग्वेजेस को फ़रोग़ देना है। इंग्लिश लैंग्वेज तो हम यहाँ हमारी जो यूनिवर्सल है वो तो हमें बोलनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं उनको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जो आने वाली यूथ जो है वो इसको थोड़ा सा वो भी इसमें इंटरेस्ट लें। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है वो मिक्स कम्युनिटी लैंग्वेजेस में किया जाता है। मेरे साथ और भी बहुत सारे प्रेजेंटर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में प्रोग्राम को पेश करते हैं। रोमेनियन प्रोग्राम पेश किया जाता है, फिर इसके अलावा जो है बंगाली में होता है, पहाड़ी लैंग्वेजेस में होता है, उर्दू में होता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने किसी को डेडिकेशन देनी है, कोई विश करना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन www.aapkiawaz.co.uk पर। आप फेसबुक लाइव पर भी मैसेज दे सकते हैं। आपकी जो विश है, जो डेडिकेशन है, वो हम लाइव ऑन एयर जो है आपके प्यारों तक पहुँचाएंगे। जी, तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं ये कहती चलूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जो है वो आपकी समातों से टकरा रही है और जहाँ तक मेरा अक्स आपकी बसारतों से टकरा रहा है, आप सबको वेरी वॉर्म वेलकम, खुश आमदीद इस शो में। हमारे साथ आज एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक डेडिकेशन देती चलूँ। वासिक और इकरा का निकाह हुआ है फ्राइडे को, इस अभी ये जो जुम्मा गुजरा है उसमें, तो उनको और उनकी तमाम फैमिली को हम दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। इकरा एंड वासिक, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब हम चलेंगे थोड़े से अपनी मेहमान की तरफ। आपको आज उनके बातें सुनकर और उनके जो है टॉपिक बता दूं पहले। आज का टॉपिक जो है वो यंग मदर्स के हवाले से है कि जो मदर्स जो हैं वो थोड़ा सा करियर ब्रेक लेती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, फिर फैमिली रेस करती हैं, करियर ब्रेक होती हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का और किन किन हर्डल्स का सामना होता है और उसको फिर वो अपने बैरियर्स को कैसे ओवरकम करती हैं। तो चलते हैं, ज़रा तारुफ लेते हैं थोड़ा सा अपनी मेहमान से और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ शामिल होना चाहें तो मोर दैन वेलकम, फेसबुक लाइव पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें www.aapkiawaz.co.uk पर ज्वाइन इन कर सकते हैं सुनने के लिए, रेडियो गार्डन ऐप पर, हिंदी रेडियो ऑनलाइन ऐप और रेडियो आपकी आवाज़ बर्मिंघम फ़ोन ऐप पर भी। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनीला। कैसी हैं इरमा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया पहले तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में आज आप आई। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं फेसबुक लाइव पर, मैं उनको बताती चलूँ कि वो लाइव नहीं आना चाहते, इसलिए हमने जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेकिन वो लाइव नहीं आना चाहती, तो इसलिए हमने उनकी इस विश को रिस्पेक्ट करते हुए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो इरम, बताइए कि आप जो हैं यूके में बाय बर्थ हैं या आप यहाँ कैसे आई या किस तरह से, आपका क्या सिलसिला है? थोड़ा सा अपना तारुफ दीजिए। अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी अनीला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और
ये मौजू रखा कि जिस पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जी जी। मेरा सफ़र कुछ इतना अनयूजुअल नहीं है। हाँ। मैं बाय बर्थ यहाँ नहीं हूँ, मैं शादी के बाद आई। मुझे आए हुए यहाँ पर अब 13 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। और इससे पहले मैं पाकिस्तान में जॉब कर रही थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड लेडी विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। तो फिर यहाँ आकर मैंने कुछ अर्सा कंटिन्यू किया, लेकिन फिर मैंने फैमिली एक्सपैंड करने के लिए कुछ, तो पिछले मैं 13 साल से यहाँ पर हूँ और मैं पिछले 12 साल से मैं मतलब आउट ऑफ माई ओन फील्ड हूँ, मैं काम नहीं कर रही। और इस साल अब जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि ठीक है अब मेरे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे, जी। तो आई वॉन्ट टू कम बैक इन टू द फील्ड। ठीक है ठीक है, चलिए, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये ब्रिटिश कश्मीरी और मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है वो इस स्लॉट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटी तो मेरा ख्याल है कि आपने थोड़ा सा जो है ना आपका एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो हम थोड़ा सा पहले उसको टच कर लेते हैं। तो यानी कि आप बाय बर्थ पाकिस्तान से हैं, सो आई अज्यूम कि आपकी एजुकेशन भी पाकिस्तान में हुई होगी। मैंने 12th ग्रेड तक एमिरेट्स में रही और वहाँ पे किया। अच्छा, आप एमिरेट्स में भी हैं। यही ना, थोड़े थोड़े कल्चर्स को पहले टच कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मदर्स वाले सेक्शन पे आएंगे। ठीक है, जी जी। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में मीर आज़ाद कश्मीर से थे, हम वहाँ से ताल्लुक था, तो वहाँ गए। ठीक है। मैंने अपने बैचलर्स वहाँ से किया और फिर मैं अपने माशाल्लाह। मास्टर्स के लिए इस्लामाबाद चली गई। ठीक है, तो तो फिर- आपको कैसा लगा सब, मतलब डिफरेंट कल्चर्स और एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको कैसा लगा दोनों तीनों जगहों में? हाँ, ये क्या फर्क एक चीज़ होती है जो आप क्योंकि आप उस कल्चर से गुजर रहे होते हैं तो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपको कल्चर चेंज होता है तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप एक डाइवर्स व्यू है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ कल्चर्स को टच किया है, बिल्कुल, मुख्तलिफ बिल्कुल। शहरों को किया है जी। और मुख्तलिफ लोगों की सोच या इवन प्रोसेस और गवर्नमेंट के लेवल पे किस तरह काम होते हैं वो देखे हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजिंग भी होता है लेकिन अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है। बिल्कुल सही। एंजॉय करते हैं तो इसको। आपने सबसे ज्यादा मतलब इस जगह पे आपने सोचा कि ये मुझे कल्चर यहाँ का ये बहुत पसंद है, या कुछ इस तरह से कोई थोड़ी सी रोशनी डालें इसमें? अच्छा, हर जगह के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। मुझे जब हम जितना अर्सा हमारा दुबई में गुजरा, हमने बहुत इंजॉय किया उसको। दुबई में? अच्छा। और क्योंकि वो स्टूडेंट्स का वो टाइम होता है जिसमें आपकी कोई परेशानी, कोई स्ट्रेसेस कुछ नहीं होती। अपनी लाइफ होती है। बिल्कुल अपनी लाइफ होती है, पेरेंट्स पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सही। और आपका क्योंकि मैं थोड़ी बुकिश थी, तो फिर मैं स्कूल से अगर बहुत अच्छे हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक और है। उसके अलावा जितना कुछ आपको सीखने में, और अब क्योंकि आप दुबई में आप हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोगों के लोग साथ आते हैं। आप बिल्कुल आप ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडियंस बहुत से होते हैं, Indians होते हैं, फिर अरब कम्युनिटी से बहुत से लोग होते हैं। तो वो जो एक एक्सपोजर होता है जिसमें सब डिफरेंट होते हैं, लेकिन डाइवर्स कम्युनिटी। एग्जैक्टली, तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर पाकिस्तान आके चैलेंज था क्योंकि एकदम इतनी डाइवर्सिटी से आप बहुत एक नैरो लेन में आ जाते हैं, ठीक ठीक। क्योंकि उसमें वो सारे कल्चर्स का आपको वो एक्सपोजर, और जो कि हर कल्चर की आप अच्छी चीज़ अडॉप्ट करते जा रहे थे। सही। अब आप वो सब चीज़ें ना एंजॉय करते हैं, ना ही उनका यूज़ करने आउट का ऑफ टच हो जाते हैं। बिल्कुल। और मतलब आप अगर आपने अच्छी चीज़ें पिक तो कर ली, लेकिन आप उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपको नए चैलेंजेस होते हैं कि अच्छा आप एक ऐसी जगह पे आए क्योंकि वो एक मल्टी कल्चरल नहीं है, तो आप उसके कल्चर को समझें, उसकी रिस्ट्रिक्शंस को समझें, और फिर साथ साथ वो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रहा है ये सीखें। सही। तो वो टाइम मुझे लगता है वो थोड़ा चैलेंजिंग था। जब तक कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आई, मतलब मैं प्रोफेशनल स्टडीज़ में नहीं गई और एक सोच डेवलप होना नहीं शुरू हुई, तो मुझे वो चैलेंजिंग लगता था। तो एक एडेप्शन का पीरियड था जो 2-3 साल का था। ठीक है। तो उसके बाद में जितना भी वक्त पाकिस्तान में गुजरा वो बहुत अच्छा था। अगेन वही इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी गए तो फिर मुख्तलिफ शहरों के लोगों से मुलाकात वहाँ पे हुई। भी बिल्कुल, मुख्तलिफ वहाँ पे लोग भी आते यही था। और फिर जॉब में भी ये था, मैंने 7 साल एज एन इंजीनियर जॉब की, और वहाँ पे भी यही था। इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में ही है। तो वहाँ पर भी यही था कि मुख्तलिफ शहरों के लोग थे, और फिर मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रही थी। यू आर सच अ ब्रेव लेडी कि आप मीरपुर शहर से? जी, मीरपुर शहर से। मीरपुर शहर से आप आई और फिर आपने अपने एजुकेशन का एक सिलसिला जारी रखा, फिर आप दुबई गई, वहाँ से आपने अपनी तालीम का सिलसिला जी, जारी रखा, बिल्कुल। फिर वापस पाकिस्तान आई, वहाँ से फिर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का किया, आई एम श्योर के डिग्री की, BSc जी, बिल्कुल। वो किया, और फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद चली जी। गई। यानी कि ऑन गोइंग एक प्रोसेस होता रहा और आप बड़ी कॉन्फिडेंट आया। वो सही, माशाल्लाह, यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, क्योंकि इस तरह से मूव करना ना खवातीन के लिए थोड़ा सा वो होता है। तो आई मुश्किल थिंक होता कि है। आपको देख के बहुत सारी जो लेडीज हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सुना जाता है रेडियो आपकी आवाज़ अच्छा। इंटरनेट के थ्रू, तो बहुत सारी जो लेडीज हमें बैक होम जैसे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर वगैरह में सुन रही है, तो इनके लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है ना।
तो उनके लिए मतलब एक ऐसी चीज जानती कि हम भी एक अगर ये कर सकती हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल, तो व्हाई नॉट, बिल्कुल। अगर आपके पास टैलेंट है हाँ, तो बिल्कुल। आपके पेरेंट्स सपोर्टिव और जब आप यंग होते हैं नीला, तो आप खुद ये डिसीजंस नहीं करते, आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव है, ओपन माइंडेड बिल्कुल, है, मतलब ये डिसीजंस, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैंने ये डिसीजंस नहीं किए, लेकिन मेरी फैमिली की लेकिन सपोर्ट थी। आपकी फैमिली की सपोर्ट, बिल्कुल। यही मैसेज हम देना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर पेरेंट्स की बैकअप हो जी, ट्रस्ट करें। बच्चियों के साथ, और बिल्कुल। जो बच्चियां हैं वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और वो बहुत दूर तक जा सकती हैं, बिल्कुल। जैसे कि आपकी एक अच्छी मिसाल हमारे पास मौजूद है, माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर थैंक यू इंजीनियर सो हैं। मच अनिला फॉर सेइंग दैट। मैंने कभी नहीं ये नहीं सोचा, मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं बहुत लकी थी कि मुझे ऐसे सपोर्टिव फैमिली मिली। मैंने बैचलर्स मीरपुर सातविश में से किया, फिर मैं मास्टर्स जो है कंप्यूटर साइंसेस में, वो मैंने इस्लामाबाद से किया था। और फिर उसके बाद एक स्टेप होता है, अब अक्सर ये ट्रेंड है क्योंकि जब बड़े शहरों में आप डिग्री करने जाते हैं करके आप वापस आ जाते हैं, मगर वो जो स्टेप मेरी फैमिली का था कि नहीं, आप प्रोफेशनल फील्ड में ही काम करना चाहते हैं, मीरपुर सातविश में आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो आप इस्लामाबाद जैसे शहर में दोबारा वापस जाएं और एक्सप्लोर करें। और मैंने अकेले जाना था। You are such a privileged person. Yes, you could say that, I think. You are such a privileged तो person, माशाल्लाह। और फिर वो सारी जर्नी आपको ब्रेव और कॉन्फिडेंट बना देती है। बना देती है। तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस घर से आपको कुछ मिलता है, बाकी जब आप सेल्फ सफिशिएंट लेडी, एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो जब मैंने वहाँ पे जॉब की, इस्लामाबाद में जब मैं जॉब कर रही थी, तो एक अमेरिकन कंपनी थी और उसमें हम लोग, अब मेरा जो डिपार्टमेंट था वो सपोर्ट का डिपार्टमेंट था, और हम उस वक्त बहुत से डिफरेंट कंट्रीज में सपोर्ट देते थे, और मैं डायरेक्टली जर्मन, जो हमारी जर्मनी ब्रांच थी, जापान ब्रांच थी, चाइना थी, उनके साथ डील करती थी, और सबसे ज़्यादा डीलिंग मेरी अमेरिकन ब्रांच के साथ होती थी। अच्छा। अब कस्टमर्स 2000 थे क्लाइंट्स से सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे भी आपने जाहिर है कि एक मुख्तलिफ जो बिल्कुल, तो वो एक्सपोजर भी बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब हम कहीं जाते हैं और एक्सपोजर होता है, वो अलग बात होती है। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। एग्जैक्टली, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपने काम से लेके पढ़ाई से लेके हर जगह कुछ ना कुछ पिक किया, सीखा। Exactly. तो आई एम श्योर कि फिर आपने जब, क्योंकि इतना ज्यादा आपका एक्सपोजर था, तो जब आप यूके आई तो आपको एडजस्ट होने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं लगा कल्चरल, ये बात सही है। मुझे That's good to hear. हाँ, और जाहिर मेरे लैंग्वेज बैरियर नहीं था। ठीक है। इतने एक्सपोजर में आपके वो, क्योंकि हर जगह इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, तो वो मेरा ऐसा कोई मसला नहीं था। मुझे इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं महसूस हुआ कि अपने आप को किस इंटीग्रेट कर लूँ इन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि बाकी जिन मुल्कों में जिनमें हम ज़्यादा डील करते हैं, क्या उनमें लेडीज़ के लिए और उसके लिए ज़्यादा मेरा ख्याल अपॉर्चुनिटीज़ एक तरह से होती हैं, क्योंकि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे आपके चैलेंजेस ज़्यादा हैं, जैसे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती, वहाँ पर लेडीज़ के बाहर निकलने के एवेन्यूज भी बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई भी मेडिकली किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल नहीं होगी। तो वो मुझे थोड़ा लगा कि अगर हाँ, यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज, इस लिहाज से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं भी होंगी आपको, वो एवेन्यूज आप एक्सप्लोर करेंगे, अभी ढूंढेंगे क्या होगा। और मुझे इतना टाइम नहीं लग मिला, क्योंकि मैंने फैमिली स्टार्ट करनी थी, तो नहीं की। और अब मुझे जो जो चीज़ें मैं टच करती हूँ, मुझे यहाँ का सिस्टम, प्रोसेसेस बहुत पसंद है, बहुत मैं मोटिवेट भी होती हूँ, इंस्पायर भी होती हूँ। और अब मैं ये जो एक और एवेन्यू एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ कि ऐसी मदर्स जो कि It's a country of opportunity. It is. Well, UK is a country of opportunities. Yes, if you're willing to do so. Yes, if you're willing to do, तो फिर ये बात बिल्कुल सही है। if you're willing to do, तो फिर आपके लिए बहुत से डिफरेंट एवेन्यूज हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं एक साइड पे अगर आप देखें, कि आपको एक कंफ्यूजन होती है कि आई स्टिल हैव टाइम टू चूज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड एज वेल, और टेक और चेंज माई जर्नी कम्प्लीटली। ये अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मतलब एक यूनिक लगी, जो मुझे बाकी जगहों पे नहीं लगी। सही। आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक था, लेकिन इतनी ज़िंदगी में इतने सफ़र करने के बाद आपने ये सोचा कि मेरी जो ट्रू शौक हैं कह लें, या मेरी इंस्पिरेशन हैं, वो एक और फील्ड से रिलेटेड हैं। सही। इस मुल्क में आपको फुल सपोर्ट मिलेगी कि आप वो स्विच करें, और जहाँ जो काम आप करना चाहते हैं, जहाँ पे चेंज लाना चाहते हैं, आप वहाँ पे अपने आप को जोड़ें। तो ये मैं देखते हैं, मैं यही चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। लकी टू हैव यू ऑन द शो टुडे, क्योंकि इस तरह की जो है ना गुफ्तगू बहुत कम सुनने को मिलती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। देखते हैं कि हमारे साथ ऑनलाइन कौन कौन मौजूद हैं और क्या क्या पैगाम दे रहे हैं। जी, हमारे साथ एक्स काउंसलर हैं मोहम्मद इखलाक साहब, और वो MBE हैं, यानी कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैं आपको थोड़े से टाइटल्स भी बता दूँ, तो ये इनका एक ख़ास टाइटल है। हमारे साथ रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं। ग्रेट शो, थैंक यू वेरी मच।
और देखते हैं जी रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी सारे मैसेजेस किए हैं। वजीहा तारिक, ओ वजीहा वेलकम टू द शो, वेरी नाइस, थैंक यू वजीहा, आपके पसंद करने के लिए पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शो अभी जो है वो कैरी ऑन करेंगे उसको, तो आप देखती रहिएगा इंशाल्लाह ताला। आज हम इरम के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और इरम जो है बहुत सारी चीज़ों को, टॉपिक्स को एक्सप्लोर भी करेंगी। आज का वैसे हमारा टॉपिक जो है वो यंग मदर्स के हवाले से है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं चाहती हूँ कि क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ाई के हवाले से, काम के हवाले से, थोड़ा सा उसको भी टच करें। तो जो हमारी ख़वातीन स्पेशली देख रही हैं पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और गिरदो नवा के ममालिक में, उनमें थोड़ी सी वो जो कहते हैं ना कि एक करेज, एक हिम्मत, एक जो होता है पैशन और इंस्पिरेशन, ये चीज़ें थोड़ी सी जागें। हमारी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर थोड़ा सा वो एक वो होता है ना कि शाइनेस सी होती है, और एक वो इंसान थोड़ा सा कभी कभी फैमिली प्रेशर्स में आके भी डिविएट हो जाता है। तो ये उन फैमिलीज़ के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप अपनी बेटियों को अच्छे से शुरू से सपोर्ट करेंगे इस सिलसिले में, तो वो इंशाल्लाह ताला जो है अपनी हर चीज़ को जो लेके बहुत अच्छा उसको अवेल करती हैं। एजुकेशन अच्छी होती है और वो एक बहुत अच्छा जो है ना, आप सोसाइटी को एक पूरा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी एक अच्छी काविश है पेरेंट्स की भी, और सोसाइटी बिल्ड होने में भी इसको बहुत जो है वो मदद मिलती है। चलें जी, हम अपनी मेहमान की तरफ दोबारा चलते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि आप हमें सुन सकते हैं www.आपकीआवाज़.co.uk पर, रेडियो गार्डन ऐप पर, हिंदी रेडियो ऑनलाइन ऐप पर, और आप हमें ऑल्सो फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक लाइव पर भी। तो अगर आप स्टूडियो में कॉल इन करना चाहें तो उसके लिए नंबर होगा 01216828142, दैट्स 01216828142। अगर आप प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहें तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं 07944808141, दैट्स 07944808141 पर। तो चलिए हम अपनी मेहमान की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी रम, तो ये तो हमने थोड़ा सा मतलब आपका एक्सपीरियंस और उसको सारा शेयर किया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो चलें अब हम अपने जो आज का टॉपिक हमने रखा हुआ है यंग मदर्स के हवाले से, उस सिलसिले में पहले तो बताइए कि आपके मतलब कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे, 1 बेटी। माशाल्लाह। तो क्या एज है उनकी? मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है, अच्छा, फिर 10 साल का है दूसरा बेटा, ठीक है, और बेटी मेरी 4 साल की है। अच्छा, बहुत छोटी है, बहुत छोटी, ठीक है, बहुत छोटी है, ज़ाहिर है उसको अभी आपकी ज़रूरत है ना। जी, तो ठीक है, अच्छा चलें, ये तो हाँ जी, यंग फैमिली को यानी कि आपने टाइम देने के लिए अपने आप से थोड़ा सा करियर ब्रेक ली। जी बिल्कुल। तो ठीक है, आप थोड़ा टाइम देना चाहती हैं फैमिली को। जी तो बिल्कुल। क्या क्या आप सोचती हैं कि देन एंड नाउ आप कैसा देखती हैं अपने आप को, यानी कि तब जब आप बहुत एक्टिव थी, आप जॉब में थी, और ज़ाहिर है कि इंसान के अंदर वो एक होता है ना पैशन कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर, एक वो जीत का एहसास होता है। तो घर में जैसे बच्चों को रेस करना और ये सब, ये भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली कि ये ख़वातीन की जो है होती है हर सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो बच्चों को अच्छे से रेस करती हैं हर तरह से। तो बताइए कि देन एंड नाउ में क्या फ़र्क है? ज़ाहिर है बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ चेंज होता है, और सबसे ये बड़ी बात है कि बच्चों स्पेशल मैं शादी का भी कहूँगी, लेकिन स्पेशली माँ बनने से पहले का जो आपका एक्सपीरियंस होता है जी, वो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ठीक है, कि आप पर बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे अब खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मुझे याद है कि शुरू के 1-2 साल बच्चे पैदा होने के बाद बहुत ओवरवेलमिंग था कि आप सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, ठीक है। और आप अपनी लाइफ जो है कम्प्लीटली रिवॉल्व होती है इन अ गुड वे, रिवॉल्व होती है बच्चों के इर्द-गिर्द कि कब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनकी तबीयत ठीक है, इनके जो ग्रोइंग माइलस्टोन्स हैं वो रीच हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या ये जहनी तौर पे क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इमोशनली क्या हो रहा है, ठीक है, फिजिकली ठीक है। तो अब आप देखिए ना, आपके अंदर वो जितनी क्वालिटीज़ थी कि जैसे आप वर्किंग वुमेन, आपने वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब की हुई थी, आपको पता था, बिकॉज आपकी वो ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग भी उस तरीके से हुई कि आप प्रेशर टेक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये फैमिली सिस्टम में भी ये भी एक मतलब थोड़ा सा बंदा अंडर प्रेशर हो जाता है कि अभी बच्चे और ये संभालना सारा कुछ, ये एक माएँ घबरा जाती हैं।
कुछ जो ज़रा मेंटली ट्रेंड होती हैं वो ज़रा अच्छे तरीके से इसको लेके चलती हैं, और बच्चों की जो आगे मुस्तकबिल में जो चीज़ें होनी होती हैं उसके लिए भी अच्छे डिसीजंस लेती हैं जो वर्किंग मदर्स होती हैं। बिल्कुल, ये और एक तो उनका एक्सपोजर होता है, फिर वो ये भी देखते हैं कि अगर हम कुछ भी सीखते हैं मुआशरे में उसकी क्या जगह होती है, बिल्कुल ठीक और है। हम किस जगह से, किस एवेन्यू से क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। और आप अब जैसे हम बच्चों पे ध्यान देने की बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो फिजिकली फिट रहें क्या, बिल्कुल ठीक ये है। भी होती है कि कल को हमने कम्युनिटी को किस किस्म के इंडिविजुअल्स, हमारे घर से किस किस्म के जी, responsible individuals, citizen। बिल्कुल। और ये सोसाइटी के पिलर्स बनेंगे या बिल्कुल। ये सोसाइटी का बर्डन बनेंगे या क्या होगा, या ठीक है। देखें या So ये it's a huge responsibility responsibility for mothers, you know, from the young age. It's a जी, huge बिल्कुल। responsibility for mothers. बिल्कुल, और बहुत सी चीज़ें अर्ली ऑन ही बच्चों की शुरू की एज में ही सेट हो जाती हैं, चाहे वो हैबिट्स है। हैं, चाहे वो उनके सोचने का तरीका है, बहुत ही आप उसको इम्प्रूव करते रह सकते हैं। सही। इसका मतलब है कि आप बाद में भी उनको मुसलसल वक्त दे रहे हैं जब उनकी सोच डेवलप हो रही है। जी। लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, शुरू में ही सेट होने लग जाती हैं। ठीक है। और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैसे सब कहते हैं कि अच्छा इसका रिटर्न यानी कि आप एक ऐसा सेल्फलेस रिश्ता अपने बच्चों के साथ बना रहे होते हैं, इसका रिटर्न यही होता है कि आप वो सेल्फलेसनेस आपको या अपने पेरेंट्स से मिलती है या आप अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। वो अपनी जगह, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ओवरवेलमिंग है। और जब हम कहते हैं यंग मदर्स जो है वो परेशान हो जाती हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, परेशान होना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इतनी बड़ी है। और आप परेशान होंगे तो आप सोचेंगे, आप उसको चैलेंज समझेंगे, आप उसके लिए सोल्यूशंस ढूंढेंगे और आप उसको गिव अप नहीं करेंगे। ये बात नहीं करेंगे। तो हाँ, वो ये कोई भी ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कोई भी मदर्स ऐसी होती है जितना कॉन्फिडेंटली बस वो फ्लोट थ्रू ये सेल कर जाती हैं और चैलेंजेस नहीं आते और परेशान नहीं होती। नहीं, चैलेंजेस आते हैं बिल्कुल, मदर्स के बिल्कुल। लिए, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते बिल्कुल, हैं। हाँ, ये है कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होता है उतना ज़्यादा आप में बहुत सी चीज़ों बातों में ठहराव होता है, और आप समझते हैं कि ठीक है, ये अगर इस तरह हालात होते हैं, इस तरह जिस तरह भी चलना है चलेंगे। और बच्चों को हम क्या, अब जैसे बच्चे भी कभी ये, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपसे सवाल करते हैं, सही। और आपने अपनी आपको कम्प्लीटली उनकी लाइफ में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो भी बहुत हैरान होते हैं कि इससे पहले हमारी माँ की भी एक जिंदगी थी, उसमें एक बिल्कुल, सोच थी। बिल्कुल। तो ये डिस्कशन से एक टाइम आता है, आप शुरू करते हैं ना, सही। और इससे बच्चे मोटिवेट भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, ठीक है। और फिर जो आप वो प्रोसेस लेके आते हैं कि मैं इतने ज़्यादा लोगों से मिली और उनके तजुर्बे ये थे, जी, ठीक है, बिल्कुल। उनसे मैंने ये सीखा है, तो अब मैं आगे भी सिखा सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है? सही, बिल्कुल तो एक सही। विजन और एक मतलब दूरअंदेशी आप में होती है फिर, बिल्कुल ना, सही। जो कि बच्चे रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी यहाँ पे। आपके ख्याल में कि जो मदर्स सोचती हैं कि उनको करियर ब्रेक नहीं लेना है और बच्चों को नर्सरी वगैरह में डाल देते हैं या कुछ इस तरह से कोई इस तरह की चीज़ कर लेते हैं, वो जितनी उनकी मैटरनिटी लीव होती है उसके बाद वो वापस काम पे अपने चली जाती जॉब हैं। पे चली जाती हैं। तो फिर आई मीन ऐसे सिलसिले में क्या आप सोचती हैं कि कैसे मैनेज कैसे हो पाता है? क्या बच्चे पेरेंट्स के साथ इतना इंटैक्ट रह पाते हैं, नहीं रह पाते? क्या उनके साथ वो बॉन्डिंग बनती है या नहीं बनती? अच्छा, अब ये या एक किस तरह जब से वर्किंग वुमेन का सिलसिला शुरू हुआ है, जी। तब से ये एक सवाल है, ठीक है? बिल्कुल। और ये एक पर्सनल डिसीजन है, एंड देयर आर नो राइट वेज, जस्ट व्हाट इज राइट फॉर यू और व्हाट यू चूज टू डू एंड हाउ यू चूज टू इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। एग्जैक्टली। तो अब इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। हाँ, अब सही। ये है कि आप एक ऑप्शन देते हैं, हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर और आपको ये देखना है कि आपकी अपनी प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं नहीं लेना चाहती करियर ब्रेक और मैं मजबूर होकर कर रही हूँ, तो मैं कभी भी उस हाल में खुश नहीं होंगी। सही। खुश नहीं होंगी, वो हैप्पी मदर हैप्पी चिल्ड्रन हैप्पी हाउस का वो फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत चीज, मतलब वो जो सैक्रिफाइस थी और वो जो कुछ भी मैं गिव अप कर रही हूँ, उससे मेरे ही बच्चों को फायदा होता अगर मैं गिव अप ना करती तो उनके लिए ज्यादा मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आप जो भी ले रहे हैं, जो भी दोनों में से जो भी लेंगे, आप रास्ता लेंगे, दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने अपनी सोच के मुताबिक, प्रायोरिटीज के मुताबिक फैसला किया, मजबूर होकर नहीं किया, बिल्कुल तो जो भी रास्ता आपने लिया है मेन उसको पॉइंट ये है निभाएंगे। कि आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था सच कि आप जो थे ना कि उसके अंदर आके फिर आप एक वो डिस्ट्रेस हेजिटेशन भी होती है और एक मजबूरी भी हो जाती है, डिस्ट्रेस भी होता है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये मुझे तो ये नहीं चाहिए था, लेकिन मैं वो बच्चों को फिर सही तरह से रेज नहीं कर पाती। बिल्कुल। और अब बच्चों की जिंदगी चेंज हो रही होती है, देखिए उनका ग्रोथ स्पैन कितना क्विक होता है पहले 10-12 साल का, ठीक है, और आपकी तभी slow हो ज्यादा जाती जरूरत है। होती है। बिल्कुल, तभी ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगर आपने मतलब नहीं छोड़ना चाहते थे करियर और छोड़ के बैठे हैं, आपके लिए आपकी जिंदगी में वो इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सही। आप सपोर्ट सिस्टम है, बैकबोन है घर की, और
अच्छा, ये जो सपोर्ट सिस्टम घर की बैकबोन होती है, सबसे अनएक्नॉलेज्ड जॉब होती है, अगर आपको अंदाजा होगा। सही बिल्कुल, आपको कोई पे राइज नहीं मिलनी है, बिल्कुल कोई आपके बिल्कुल, ये ऑनगोइंग जॉब है, 24/7 है, और ये ऑनगोइंग है, और कोई एक्नॉलेजमेंट्स नहीं आएंगी फॉर्मली, नहीं। कुछ ऐसा नहीं होगा। और बच्चे भी समझेंगे कि ये तो मदर की जॉब है ना, वो तो उसने करनी करनी है, उसके लिए यानी कि कुछ नहीं। वो उनका मतलब जाहिर है, बच्चे होते हैं, वो अपनी जिंदगी समझ रहे होते हैं, वो अपने बहुत से कंफ्लिक्ट से गुजर रहे होते हैं, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे कभी। हम लोग भी जब बच्चे थे ऐसे ही थे, हम भी हमें ऐसे ही अंदाजा थे, नहीं होता बिल्कुल। था कि हमारी मदर्स कितना हार्ड वर्क करती हैं। जब बिल्कुल। बड़े हुए हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी तो फिर पता चला कि ओहो, ये सारी चीजों के Exactly. होना पड़ता है। और मतलब फादर्स भी अपनी बहुत सी सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी लाइफ स्टॉप करते हैं, वो बिल्कुल। भी अपना सब कुछ अगर अर्न करते हैं तो उनका यही होता है कि हम अपने बच्चों पर को किस तरह बेहतर बिल्कुल, उन्हीं के लिए, opportunities फैमिली दें, के लिए कर रहे उनके होते लिए करो, तो वो दोनों अपना वर्कर्स बच्चों को बनाते हैं, ठीक है। और देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि जो दुबई का टाइम था, जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं थी, कुछ नहीं था, पेरेंट्स हर चीज के लिए सपोर्ट कर रहे थे, सही, तो जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे वो स्टॉप करके ही कर रहे थे। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरी मदर की भी ये जर्नी थी कि उन्होंने शुरू में कुछ टाइम ऑफ लिया और फिर वो टीचिंग में चली गई दुबई में, अच्छा, और जब वो बाद में रिटायर हुई तो वो वाइस प्रिंसिपल थी। देखिए, वहाँ से। आपकी मदर, अब यहाँ से मुझे ये पॉइंट मिला, आपकी मदर एजुकेशन में थी ना, जी, तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी बेटी जो है वो उनसे भी बेहतर करे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बात उन्होंने कहते अपनी भी थे, बेटी के हाँ। ऊपर पूरा जो वो कहते हैं ना ट्रस्ट और एतमाद भी किया, और उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि यू कैन डू इट योरसेल्फ, कि आपको हर बिल्कुल। चीज की यानी कि वो इजाजत जो होती है ना घर से, जो मुश्किल से मिलती है कभी बिल्कुल, कभी, बिल्कुल। कि आपको यानी इस्लामाबाद, कहाँ मीरपुर और कहाँ इस्लामाबाद में जाकर जॉब करना, वहाँ रहना बिल्कुल। पढ़ना, तो इसके लिए मतलब देयर इज अ लॉट टू टेक इन। बहुत ज्यादा, और वो खुद कहती थी बच्चों के ऊपर भी यानी कि स्पेशली बच्चियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन क्योंकि मदर्स जो हैं वो एक अच्छे सोच की मालिक होती हैं, तो वो फिर अपनी बच्चियों को भी उतना ही कॉन्फिडेंस देती हैं, और माशाल्लाह देखें उन्होंने आपको एक कितना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया है कि आप अच्छे से जो है यूके के कल्चर में भी इंटीग्रेट हो गए हैं। जी बिल्कुल। और मैं मतलब, और वो भी अब जैसे अब उनका भी जर्नी था कि वो छोटे शहर से थी, कश्मीर से, फिर वो दुबई जाकर रही, जब उनको जॉब करनी थी सब कुछ, तो वो फिर उन्होंने अपना करियर वहाँ पर शुरू किया। सही है। और अच्छा, हम लैंग्वेज की बात करते हैं, वो फ्लुएंटली अरबिक बोल लेती थी। मेरे वालिद जो थे वो आर्मी में थे, वो उन्होंने उनको भी सिखाई। ठीक है। और हम समझते थे कि ये जैसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो सब लोग ही करते हैं, सब लोग करते हैं, सब कर नहीं सकते, नहीं करते, अरबिक इज क्वाइट डिफिकल्ट, सब क्वाइट डिफिकल्ट। तो वो बोलती थी, उनके फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, उनमें वो उनसे मिलती थी, उनका भी मतलब वह लर्निंग का बहुत एप्टीट्यूड था कि वो हर चीज को सीखना, दिलचस्पी लेना। ठीक है। तो मेरे ख्याल है ये जो चीज उन्होंने पास ऑन की ना, कि हर टीचर्स चीज बहुत में डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन, उनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। तो देखें, इतना अच्छा डिसिप्लिन जो था वो आप में ट्रांसफर हुआ, और आप एक अच्छी शख्सियत के साथ उभर कर सामने आई। थैंक यू सो तो मच। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे फ्यूचर में। तो आप चलें थोड़ा सा ये बताएं कि आपको हर्डल्स क्या क्या आती हैं बच्चों के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, या उनकी कोई ग्रोइंग एज उसके हवाले से, या कोई कल्चर डिफरेंस के हवाले। आप सोचती हैं कि अगर पाकिस्तान में होते तो शायद ये इस तरह से हम कर लेते, यहाँ हमें या कुछ भी, जैसे आपके जहन में कोई चीज़, कोई ऐसी हर्डल्स या कुछ ऐसे बैरियर्स जिसको आप सोचती हैं कि इसको इस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ है? अच्छा, कुछ बैरियर्स तो अच्छे होते हैं, जब वो आते हैं आप सोचते हैं कि इसका और दूसरा रास्ता क्या हो सकता था। जी। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुबई के, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। तो जब अब कहने को मतलब मैं वर्किंग वूमेन थी, सब कुछ था, लेकिन जब मेरे बच्चों ने नर्सरी भी जाना शुरू किया तो मेरा पहला तजुर्बा था कि ये 3 से 5 साल के बच्चों को किस तरह की अटेंशन देते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है। और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा भी। और ठीक है। अगर मुझे लगता था, मुझे किसी ने बहुत अच्छा मशवरा ये दिया था कि अगर आपको लग रहा है कि ये एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीजें कवर नहीं हो रही, तो योर होम इज एन इंस्टीट्यूट, आप वहाँ पर वो चीजों पर ध्यान दें। बिल्कुल ठीक है। और एजुकेशन का जो वो लोग कवर कर रहे हैं, आप उसको भी देखें, अप्रिशिएट करें। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत सही बात थी। मैंने हमेशा बच्चों के स्कूल में जाकर, जो भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ यहाँ के फुल टीचिंग सिस्टम जो है, जो टीचर्स पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। अब मेरा तजुर्बा प्राइमरी स्कूल तक है अभी तक, ठीक है, ठीक है। और बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बच्चों की नीड्स, बच्चों की वांट्स, और कहाँ कौन सी चीज़, वो आपको भी साथ साथ एजुकेट करते हैं। ठीक है। लेकिन चैलेंज ये है कि आपने समझना है, ताकि आप बच्चों को सपोर्ट कर सकें ना, बच्चों को सपोर्ट कर सकें। चैलेंज ये है कि आपने, अब हमने इस तरह से पढ़ाई नहीं की, ठीक है। और एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जब शुरू में हम तो ABC या उस तरह पढ़ते थे, ठीक है। तो जब बच्चों को पढ़ना था तो बच्चे फोनिक्स में पढ़ रहे थे, जी, ठीक है। और अब छोटी सी बात है, 1-2 दिन लगा के वो फोनिक्स सीख लिया, लेकिन इनिशियली वो जो
चेंज था कि अच्छा ये ABC नहीं पढ़ेंगे नहीं, और हाँ, हाँ। ये लेटर्स को इस तरह ज्वाइन करेंगे और है। ये इस तरह होगा, तो वो कब पढ़ेंगे वो कपड़े और उस तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। ये डिफरेंट था आपके लिए? मेरे लिए बहुत different था। शॉकिंग सिचुएशन और इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग Interesting, okay. somehow Not shocking, found interesting. very interesting था Very और बहुत और थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा कि अच्छा फिर मैंने ये नहीं करवाना जो मुझे आता है, मुझे चेंज होना है और मदर को चेंज होना पड़ा बच्चों के मदर को लिए। चेंज होना पड़ेगा, ठीक Right, है। right, तो आप ठीक है। अपना या ना ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा फिर मैं तो इस तरह पढ़ा था, आपको वो इस तरह करा अच्छा, देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आपको स्टॉप करूंगी। मैं अपने सुनने वाली जितनी भी मदर्स हैं उनको मैसेज दूंगी। देखें, एक मदर्स ने जो है वो अपने बच्चे की लाइफ में इंटरेस्ट लिया, स्कूलिंग जो थी उसकी उसमें इंटरेस्ट लिया। उनका क्योंकि तजर्बा नहीं था, यहाँ का एक्सपोजर नहीं था कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है, तो उन्होंने अपने बच्चों की बेहतरी के लिए अपने आप में चेंज लेकर आई। कितनी बड़ी चीज़ है ये कि अपने आप में खुद में चेंज लेकर आना। तो ये भी एक चीज़ होती है कि जो मदर्स होती हैं, अगर वो बच्चों को चाहती हैं कि वो सभी मदर चाहती हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा जो है पढ़ लिख कर अच्छे शहरी बने, रिस्पॉन्सिबल एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर सामने आए। लेकिन उसके लिए आपको किन किन चीज़ों के गो थ्रू होना पड़ता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि आप खुद में भी थोड़ी बहुत आपको तब्दीली लानी पड़ती है। ये नहीं कि आप जैसे वो कहते हैं ना कि माइट इज़ राइट, या जिस तरह के आप लकीर के फ़कीर जिस तरह से चलते जा रहे हैं कि उसी तरह से चलना। माओं को भी थोड़ा सा अपने आप को ज़माने के साथ और बाकी चीज़ों के साथ थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच सनीला। तो जब हम अच्छा स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने स्कूल को जाके इनिशियली नर्सरी में तो नहीं, लेकिन जब रिसेप्शन में थे अच्छा। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया और उन्होंने, बल्कि वो जो यंग टीचर थे हालांकि, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने भी बहुत सी चीज़ें द वे वी स्टडीड दे आर वेरी डिफरेंट नाउ, सो आई डू अंडरस्टैंड योर चैलेंज। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा अगर मैं कभी जैसे बच्चे घर में सवाल करते हैं मैं आपसे कर दिया करूँ ठीक है, कि ये ऐसा क्यों है और ये लेकिन ऐसे आपने क्यों पूरा करते हैं। इंटरेस्ट शो किया। बिल्कुल। और अच्छा, और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जितना इंटरेस्ट पेरेंट्स बच्चों में शो कर रहे होते हैं और उनकी प्रोग्रेस में ये एक इफेक्ट होता है कि वो टीचर्स भी उन बच्चों में उतना ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मुझे उन्हें अंदाजा पता नहीं होता था। है कि फैमिलीज जो है वो इन टच हैं और उनको अपने बच्चे की फिक्र है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं फिर एक छोटा सा सवाल करूंगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, मदर्स खास तौर पे, वो ध्यान नहीं देती हैं। वो कहती हैं बस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को तैयार किया, हम पिक एंड ड्रॉप कर लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। या कुछ के लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो आप कैसा समझती हैं कि उनको मतलब उनको थोड़ा सा शाय अवे नहीं होना चाहिए? स्कूल्स में कुछ ऐसी चीज़ होती है कि अगर उनके लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हों तो उसको भी कम ओवर किया जा सकता है, या किस तरह से उसको लेंगी कि स्कूल कुछ हेल्प करते हैं पेरेंट्स? स्कूल करते हैं। जो पहले जिन बच्चे मेरे स्कूल में थे मुझे अंदाज़ा नहीं उसका, लेकिन अब जहाँ वो आलम रॉक स्कूल में जाते हैं यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस होती हैं। ठीक अब मैंने तो नहीं ज्वाइन की, लेकिन वो स्कूल का जो मैसेज आता है उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ठीक जो पेरेंट्स के लिए हम इंग्लिश क्लासेस कर रहे हैं उनके टाइम चेंज हो गए हैं, कुछ इस तरह का। तो वो एफर्ट यानी कि वो पेरेंट्स को भी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ताकि वो करते अपने हैं। बच्चे का जो है सही तरीके से उसकी हेल्प कर बिल्कुल। सकें। और हम मैं एक ये टीम तो मॉर्निंग्स बहुत ही होती अच्छी। हैं। देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी में नहीं पता, तो ये हम छोटे छोटे जेम्स जो है ना वो कम्युनिटी में फेंक रहे हैं ताकि लोग इनको पिक करें और बिल्कुल। इनसे जो है ना वो एक अच्छी रविश जो है वो जी आने बिल्कुल। लगे। मैंने शुरू में भी ये कहा था कि मुझे इस मुल्क में यहाँ की प्रोसेसेस और सिस्टम्स बहुत अच्छे लगे। ठीक है। ठीक है, और वो यही था कि देखिए अगर उनको कोई चैलेंज आता है वो खुद नोट करते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान और टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान भी एक डिस्कनेक्ट है, वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से है। ठीक है, तो उन्होंने उसको एड्रेस किया है। उन्होंने इसको address किया, ठीक और है। ये टीम मॉर्निंग्स स्कूल्स में होती हैं, कभी फ्रीक्वेंटली उन्होंने होती देखें हैं। बच्चों के पेरेंट्स के लिए इंग्लिश क्लासेस रखी हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें इंग्लिश क्लासेस थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम बात कर रहे थे कि अच्छा अगर हम कुछ अगर आप हमें ऐसा कुछ प्रोवाइड करें कि हम मदर्स कुछ एक्सरसाइज या कुछ इस किस्म की चीज़ें स्कूल के अंदर करना चाहें, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि कोई भी एक्टिविटी पेरेंट्स सजेस्ट करें एंड यू ब्रिंग इन अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मतलब स्कूल का सिस्टम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए, उस सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं। अब आपका बच्चा, आप क्योंकि वो शुरू से ही स्कूल और नर्सरी जा रहा है, ठीक है, और आप ठीक है। उसके लिए बाद में वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बहुत आगे जा चुका है, वो बहुत आगे सीख जा चुका है। ठीक है, ठीक है। और वो आपके लिए इतनी पेशेंस रखता है कि आप कैचअप करें या कर रहे हैं, और आप थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन का मसला हो जाता बिल्कुल है। हो जाता है। ठीक है। चैलेंजेस फिर भी रहते हैं, फिर भी लेकिन रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। अगर मेरा ख्याल है पेरेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते तो स्कूल में अच्छा, इस स्कूल में तो ऐसे पेरेंट्स जिनका, ऐसे टीचर्स और ऐसा स्टाफ मौजूद है जिनका जो
बैकग्राउंड ऑफ एशियन है, तो ठीक वो है। उनको बुला लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप रिक्वेस्ट करें कि अच्छा मैं बात नहीं कर सकते, तो आपके लिए उस मीटिंग में बाकायदा इंटरप्रेटर का इंतजाम करते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल वो ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते हर हैं तरह कि से connect कोशिश हो। कर रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों में इंटरेस्ट शो करें। बिल्कुल बनती है, लेकिन जाहिर है हर दफा पेरेंट्स के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ ये होते हैं कि अब 2-3 बच्चे छोटे हैं और आप एक बड़े बच्चे के लिए स्कूल में कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ही छोटा बच्चा, जैसे साल से नीचे का, साल से कम जो बच्चों की उम्र होती है, वो पेरेंट नहीं इन्वॉल्व हो पाता। अगर खासतौर पर बच्चा बीमार है ठीक है। या कोई और चैलेंजेस हैं, कोई भी इलनेसेस इस किस्म की लॉन्ग टर्म है, ठीक वो पेरेंट्स फिर इन्वॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। तो वहाँ पे स्कूल को ही स्टेप इन करके जो कुछ भी कर सकें, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स इन वजूहत की वजह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। चाहे बच्चा कुछ चैलेंजेस तो आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, जैसे ऑटिस्टिक बच्चा है। सही अब सही अब वो एक तो पेरेंट जाहिर है। बिल्कुल, लेकिन अब भाई एक पेरेंट उसके 2-3 बच्चे नॉर्मल है या एक ऑटिस्टिक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट नेचुरली उस ऑटिस्टिक बच्चे के साथ ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। ठीक है। सपोर्ट भी ज्यादा होगी, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स भी ज्यादा होंगी, सही बात है। तो वो वो भी एक अपने आप में वो भी एक चैलेंज है। है। समझ तो वो सही। पेरेंट उन 2-3 बच्चों को स्कूल के साथ ना सपोर्ट इतना ज्यादा कर सकता है, ना स्कूल की जर्नी उनकी समझ सकता है कि अब उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लैंग्वेज चैलेंजेस हैं, जाहिर कैसा है कि है। वो फिर इनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी तो होते हैं। लेकिन ज्यादातर प्राइमरी स्कूल तक वो नॉर्मल स्कूल्स में ही होते हैं, और उनकी उन बच्चों की सपोर्ट के लिए और स्टाफ होता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। शायद वजीहा कुछ पूछ रही हैं, देखते हैं वजीहा। अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा जी इरम इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट यंग मदर्स एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है वजीहा, आपका पैगाम पहुँच गया। फिर उन्होंने पूछा है आस्क हर हाउ टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन देयर एजुकेशन इन दिस कंट्री। अच्छा जी, आस्क हर हाउ टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन देयर एजुकेशन इन दिस कंट्री। अच्छा जी, आप बताइए कि वजिया पूछ रही हैं कि इस कंट्री में बच्चों को जो एजुकेशन में किस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, आप मैं बच्चों को जब आप किसी भी कंट्री में आपने सपोर्ट करना है, एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना है, सबसे पहला जो सबसे बहुत छोटा स्टेप लगता है, लेकिन जब आपने रेगुलर करना हो तो वो स्टेप बहुत मुश्किल होता है। वो ये कि जब बच्चा घर में आता है, वापस आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो आप उसका मूड असेस करते हैं, ठीक है, कि वो परेशान है, खुश है, क्या अपने दोस्तों के बारे में या टीचर्स के बारे में बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि आप देखें। अच्छा। इसका सब Mood swings? मूड स्विंग से ये भी कि सब बच्चे घर आकर नहीं बताते कि मुझे सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सही बात या मुझे बाकी शाये class होते में हैं बस- या बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं होता, या मेरा ख्याल है कि अब हम किसी बड़े आदमी से या किसी ग्रोन अप से कहें कि हम एक्सप्लेन करो तुम्हें क्या इमोशनल चैलेंजेस है, तो उसको बताना मुश्किल होगा। सही तो बात है। बच्चे के लिए तो बहुत कंफ्लिक्टिंग होता है, ठीक है, कि मुझे एक पेरेंट हंस के वेलकम कर रहा है सही। और मैं कहाँ से बताना शुरू करूँ, क्या वो समझेगा भी, और कुछ चीज़ों से खुद समझ नहीं आती कि मुझे किस चीज़ ने अपसेट किया है आज, ठीक है। अगर चले बच्चों की साइकोलॉजी, बिल्कुल, आप थोड़ा सा वो आप अच्छा, आप जब मैं बच्चों को पिक करने जाती थी तो मेरे पास और ऑप्शंस थे कि अच्छा इनको किसी और के साथ, कजन्स के साथ आ जाए। मैंने इस बात को बहुत प्रायोरिटाइज करती थी, और मैं हमेशा कहती थी मैंने करियर ब्रेक लिया ही इसलिए पिक मैं ही करने आऊंगी, क्योंकि मैं कहती थी मुझे फुल डेडिकेशन। मैं ये नहीं कहती सब लोग करें, Thank you. नहीं, लेकिन ये एक मदर्स के ऊपर ये देखिए ना आप, जो है एक पूरी फैमिली को मैनेज करना, स्पेशली बच्चों को, मदर्स ही होती हैं जो पहले 10, 12, 15 साल में बच्चे को बिल्कुल निखार के बना देती हैं और फिर वो एक अच्छे शहरी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको वो सारा एजुकेशन के सिलसिले को ले, जो मोस्टली जो फादर्स होते हैं वो तो ज़्यादातर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ह्यूज होती है कि उन्होंने पूरी फैमिली सिस्टम को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, बच्चों को, सबको। तो मदर्स की ये हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हैट्स ऑफ टू यू कि आपने यानी कि इतनी डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों के साथ ये सब माएँ कर सकती हैं, लेकिन सब कुछ फिर शाय अवे होती हैं, या कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ इमोशनल होती हैं, और कुछ जो होते हैं लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, इस वजह से शायद ये बात नहीं कर नहीं पाती। ना। लेकिन देखिए ये बात भी तो होती है कि कुछ माएँ नहीं समझती हैं कि ये 5-10 मिनट का टास्क इतना इसकी वैल्यू और इसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज है, सही, ठीक है। सही। बस समझने की बात भी है, समझने की बात भी कि पिक करके घर ही लाना है, वो अपने कजन्स के साथ भी आ सकता है, वो अपने वालिद के साथ भी आ सकता है, ये समझने की बात है, बिल्कुल समझने की भी कि। और अगर जब मैं पिक कर रही हूँ तो मैं अक्सर पेरेंट्स को, स्कूल ने भी एक दफा मुझे याद है मैसेज किया कि पेरेंट्स बच्चों को पिक करने आते हैं और उनकी नजरें उनके
सेल फोन्स पर होती हैं। ठीक है। और वो हम देखते हैं कि वो एंटर होते हैं, अब स्कूल भी ये चीजें नोट करते हैं, जी, जी। एंटर होते हैं तो वो अपने बस मोबाइल्स को ही देख रहे होते हैं ठीक है। और उसी तरह बस बच्चा लेते हैं और फिर दोबारा अपने मोबाइल्स पर बच्चे ही की चले जाते एक्टिविटी हैं, में कोई दिलचस्पी नहीं होती। नहीं होती। और फिर हम बाद में कुछ 1-2 साल बाद कह रहे होते हैं हमारा बच्चा फोन को एडिक्टेड है, पहले तो हम खुद एडिक्टेड खुद हैं, ठीक है। बिल्कुल एंड सही। मैं ये नहीं तो कहती आपने मैं नहीं फोन हूँ। का इस्तेमाल भी बहुत लिमिटेड रखा हुआ है। मैंने लिमिटेड रखा है, लेकिन कुछ मैं कहती हूँ जब मेरे पास पूरा दिन था, अब मैं जब आई हूँ खुद मैं फोन अवे मैं आई इसलिए हूँ उनको। और हाँ, मेरे बच्चों को अभी तक फोन मतलब हमने कभी ना अलाउ किया ना कुछ ना, मैंने अच्छा। नहीं। और मैं ये कहती ठीक हूँ है। आपको ऐसा क्या देखना है, आप सबके सामने टीवी की बड़ी स्क्रीन पे देखें, सही। यू नो, वैसे भी ऐसा अच्छा, वही ये बात है ना कि पेरेंटल कंट्रोल तो नहीं, मैं इसको कहूंगी ट्रेनिंग होती है, कंट्रोल तो नहीं कहूंगी लेकिन ट्रेनिंग, कि पेरेंटल ट्रेनिंग होती है कि बच्चों को किस तरह से शुरू से ट्रेन करना है ताकि वो जो है ना एडजस्ट हो सके। अगर शुरू में ही बच्चे को फोन पकड़ा दें तो जाहिर है फिर वो फिर लेना बाद बहुत में मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने एक रूटीन बना उनकी ली है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और उसने एक रूटीन बना ली है कि उसने इतनी देर उस पे गेम्स खेलनी है। मैंने आज तक अपने फोन पे कोई गेम्स कभी नहीं की। अच्छा, मेरे और पीर प्रेशर होता है, मेरे बच्चे कहते हैं अच्छा हमारे दोस्त प्ले करते हैं इस पे। अच्छा, फोन्स के अलावा मैंने टीवी के अलावा लैपटॉप या आईपैड या कुछ भी पहले 5 साल मैंने प्लान किया था कि नहीं देना, और नहीं दिया। तो फिर आपने कोविड में कैसे मैनेज किया? बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। अच्छा, वो तो 5 साल के हो चुके हुए थे ना, मतलब मेरे अच्छा, दोनों ठीक बच्चे है। से थे उस वक्त वो हो चुके हुए थे। और उस वक्त भी वो एक स्क्रीन थी, हमने कभी मल्टीपल स्क्रीन खरीदी ही नहीं। तो हमारा चैलेंज ये था कि अब एक स्क्रीन है वो शेयर करनी है, एक बच्चा करेगा फिर दूसरा वेट करेगा फिर दूसरा करेगा, ठीक है। लेकिन ये कि वो जो हम दूसरे रीजन से अच्छा, शेयरिंग से भी ना एक बड़ी अच्छी हैबिट बिल्ड होती है बच्चों में कि जो हमने मिलजुल कर सबने एक दूसरे का एहसास करना है और जो है हमने मिल के करना है। अगर हम अपनी अपनी चीज तो बाज़ दफा ये एक ऐसी बॉन्डिंग नहीं बन पाती। नहीं, और अक्सर बड़ी बच्चे ही समझदार माँ है माशाल्लाह से आप। मतलब आप पीर प्रेशर बहुत है। बच्चे कहते थे हमारे दोस्त हैं वो स्क्रीन पे हर वक्त प्ले करते हैं, आप हमें ये बाकी चीजें भी एक्सबॉक्स वगैरह ये भी नहीं लेकर देते, और उस पर भी कोई गेम्स अलाउ नहीं करते। और मुझे रिस्ट्रिक्शंस थी। और मैंने जब वो बहुत इस तरह, और मैंने देखा कि अक्सर अब पेरेंट्स हम कितने फख्र से एक दूसरे को दिखाते हैं कि मेरा बच्चा 4 साल का फुल फोन ऑपरेट कर लेता है और फुल स्क्रीन कर लेता है। और अगर मैं अपने बच्चे को कुछ एजुकेशनल 5 साल की एज में स्क्रीन पे कराना चाहती थी, वो नहीं कर सकता था, मैंने उसको दिया ही नहीं था ना। तो मैंने फिर ये मालूम हुआ कि यहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो स्क्रीन्स का यूज बहुत करते हैं, ठीक है। तो कैसे मैनेज किया? नहीं, मैंने वहीं पे स्कूल से जाके फिर इंक्वायर किया कि मैंने कहा आपके पास क्या ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने बच्चों को कभी नहीं दी होती और उनका बच्चा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता स्क्रीन। तो और मैं ये भी जानती थी कि बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, बहुत रेजिलेंट होते हैं, सीखते भी बहुत जल्दी हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये हम आधे 1 घंटे में ही ये इसी तरह यूज कर रहा होगा जैसे कोई बच्चा 3 साल से यूज कर रहा होगा। अच्छा, जाहिर उन्होंने गेम्स तो प्ले नहीं करनी, उन्होंने तो एक वो पढ़ने के लिए दी है, एक वो फिर उतना लिमिटेड हो जाता है ना, लिमिटेड कर रहे हैं यूज, लेकिन उस पे भी फिर वो लिमिटेड यूज कर रहे हैं, यूज हो रहा है। और थोड़ा सा वो आपको एक फियर आता है कि क्या ये बिल्कुल सबको देखेगा और इसे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तो जाहिर है वहाँ टीचर्स मौजूद हैं, वो उसको गाइड करेंगे। फिर इसका देखें ना, इसका एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि जो बच्चे ऑनलाइन एक कुछ गलत किस्म के लोगों के साथ हो जाते हैं, उनको नहीं बेचारों को पता होता, छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से भी वो फिर बच जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने यूज़ करना और सिर्फ इस मकसद के लिए यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं यूज़ करना। अब तो मेरे बेटे ने सेकेंडरी स्कूल जाना है और कभी वो मजाक में पूछ रहा होता है कि अब तो मुझे फोन मिल सकता है, तो हम कहते हैं हम भी उसको वैसे मजाक में ही कहते हैं नहीं जब 21 साल के हो जाओ फिर कराएंगे। 21 साल के मजाक में कहते हैं जो के शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया शादी हो जाएगी तो बेटा फ्री मिलेगा, फिर वो शादी जल्दी करना चाहेगा। अच्छा, ये भी मसला है, तो ये भी मसला हो जाएगा। नहीं तो इससे खैर हम तो मैं उसको ये कहती हूँ, देखो फोन हर जो चीज जिससे आपको कोई ना कोई आसाइश मिलती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अटैच होती है और उससे आपने पर्पस क्या अटेन करना है। तो जब आप घर से दूर होंगे और होगा तो हम आपने यानी कि बहुत ही अच्छी वाइब्स जो है ना हर चीज के यूज के लिए उनकी अपब्रिंगिंग में वो बहुत उनकी जो ड्रिल इन करती हैं उनके ब्रेन में, जो अच्छी चीजें उनके जहन में डाल दी कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है इसको सही इस्तेमाल कैसे, कितनी देर करना है, कब करना है, कैसे करना है। यानी कि शुरू में ही आपने तो फिर आपको वो उसको सारी चीज को मैनेज करने में भी मुश्किल नहीं हो रहा। अगर आपने शुरू में ही गेम्स में और इन चीजों में डाल दिया होता तो फिर बच्चों से जरा वापस लेना मुश्किल होता है। अच्छा, बाउंड्री सेट करना जिसे हम कहते हैं ना, कि वो करना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे बहुत से लोग कहते थे उस वक्त मुझे आते थे आपको सपोर्ट नहीं करते कि आप बच्चे को ये सब नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक बैड मॉम होते हैं अपने बच्चे के लिए
कि वो ये मेरी वालदा नहीं कर रही हैं, बाकी लोगों की वाई कर रही हैं, ठीक है। तो इनके कुछ इश्यूज हैं जो नहीं। तो कुछ साल वो सवाल करते हैं, फिर कुछ साल बाद उनको समझ में आता है। अच्छा, एक ये बात कि जब आप बच्चों को रिसीव करते हैं तो उनका मूड देखें, और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ जो उनकी तालीम के रिलेटेड या लर्निंग के रिलेटेड, मैं हमेशा ये सवाल ज़रूर करती थी कि आज क्या किया था, आज क्या किया था? ठीक है। आज क्या बहुत किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ना, ये क्या? हमारी मदर हमसे किया करती थी कि आज अच्छा। स्कूल में क्या किया है, ये जरा आप पहले सारी बताएं। रिपोर्ट दें। हम जाहिर है हमारे जमाने में तो ये फोन वगैरह और इस तरह की नहीं थे। चीजें नहीं होती थी, नहीं थे। लेकिन ये क्वेश्चन होता था। घर हाँ, आए हैं बिल्कुल। तो आपने अपना बैग रखा है, जो भी किया है फ्रेशन अप हुए हैं, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आज आपने क्या आज आपने क्या किया। और मैं इसलिए भी करती थी, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था कि यहाँ पे किस तरह पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं, क्योंकि नो ठीक है। होमवर्क था स्कूल में, ठीक है। नो नोटबुक्स दैट कम होम, नो बुक्स दैट कम होम। तो आपके लिए शॉकिंग नहीं था ये? बहुत shocking था बच्चे का initially। बैग कहाँ है और ये सब बैग चीजें। में वो एक नोटबुक पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े बैग्स होते हैं ना, बच्चा बेचारा 5 साल का होता है और बिल्कुल। बैग वो 10 kg का उठा रहा होता है। बुक्स भी होती है, फिर टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं, नोटबुक्स भी होती हैं, नोटबुक्स भी होती हैं। बहुत सी चीजें बहुत होती सी हैं। चीजें होती तो हाँ, इनिशियली ये शॉकिंग था। और फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, और ये कुछ सीख रहे बहुत हैं कि मुश्किल नहीं। होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और जब वो आपको मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो आपको 5 मिनट देते हैं, अच्छा ये देखिए ये बुक्स में काम होता है, तो आपको अंदाजा होता है 4 महीने कुछ हो रहा था, लेकिन आप कितना देख सकते हैं उसमें ना, नहीं वो उसमें उसमें क्या नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे जरा छोटा सा कोई ऐसे लिख के दिखाओ, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, आप इस किस्म की बातें नहीं कर सकते उस वक्त बच्चे से ना। अच्छा ठीक तो मैं इसलिए भी, और फिर मैं ये भी कि अच्छा मैथ्स में एडिशन की थी, क्या किया था, कितनी बोरिंग सी बात है अब आप की ये करना, रोज करना। सही। लेकिन ये कि वो मेरा ख्याल है जब आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं और बच्चे के जवाब आते हैं और आप ऐसे उस जवाब से असेस करते हैं कि इसका दिन कैसा गुजरा या इसकी शख्सियत क्या है, तब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन इनिशियली कोई बहुत शौक से नहीं करता। सही और मैं हर रोज़ ये सवाल, अच्छा ठीक है कुछ पूछा और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं कहती थी जो गलत हो जाए वही ज़रूर याद रखा करो, ठीक फिर मुझे बताना कि क्या गलत हुआ। ठीक क्योंकि जो हो, अब आप 10 सवाल करते हैं, 10 ठीक हो गए, वो 10 सवाल नहीं याद नहीं रख सकता। सही। तो मैं वो यही बता सकता है कि हमने ये किया, हमने इस तरह Mistakes। टेंसेस में यूज़ किया। तो मैं कहती थी अच्छा मिस्टेक याद रख लिया करो, वो मुझे बता दिया करो, ठीक। ठीक है। और फिर क्या मुश्किल लगा, क्या आसान लगा, और क्या कोई ऐसी बात थी, जैसे मुझे ये पता चला कि मेरा जो दूसरा बेटा है वो अगर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो नहीं पूछता क्लास में। अच्छा, मतलब वो शाय होता है। शाय होता है, ऐसे लगता है ठीक कि है। अगर क्लास में और लोगों को कुछ बात समझ में आ गई है सही। तो मेरी शान में थोड़ा कमी आ जाएगी अगर मैंने ठीक है। पूछ लिया तो। नहीं, शाय होते हैं ना बच्चे, थोड़ा शाय सा होते वो हैं, बिल्कुल। अंडर कॉन्फिडेंस भी होते हैं। और वो नहीं, और फिर तो मैं जब शुरू से इनिशियल मैंने कहा अच्छा आपने पूछा क्यों नहीं, वहाँ क्यों नहीं, चलो मैं बता देती हूँ, लेकिन वहाँ क्यों नहीं पूछा। और किसी हद तक इस चीज़ को एड्रेस कर लिया, लेकिन ये एक पैटर्न है उसका है, ठीक है। तो मैं हर बच्चे का एक अपना होता है ना, एक अपना वो जाहिर है कि वो इतना जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का भी एक अपना स्टेमिना है, बिल्कुल। और सीखने का भी एक अपना इंटेलेक्चुअल लेवल भी अपना अपना होता है। सब तो ये कुछ, मदर्स को बिल्कुल। ही ध्यान रखना पड़ता है कि सब बच्चों को साथ लेकर उनको अच्छे तरीके से उनकी जो ग्रोइंग एज है उसमें लेकर कैसे चलना, ये मदर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत मज़ा आ रहा है जी आपसे बातें करके। तो मैं ज़रा थोड़े से ऑनलाइन मैसेजेस जो है ना वो देखती हूँ कि और कौन कौन हमारे साथ यहाँ पे शामिल है। हमने काफ़ी देर से ऑनलाइन मैसेजेस जो हैं वो नहीं किए। तो जी यहाँ पर नियाज़ हुसैन साहब हैं और वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मुनीर खोजा साहब हैं जी, इंफॉर्मेटिव गाइड, अच्छा जी सही है। और वजिया तारिक हैं, वेरी गुड इंफॉर्मेशन, ठीक है वजिया, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन एज वेल फॉर द प्रोग्राम। और कौन कौन है जी, फिरदौस उस्मानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी देख रही हैं, आपने बहुत अच्छा इस्लामिक प्रोग्राम पेश किया और उसके बाद आप हमारे साथ भी शामिल हैं। और कौन कौन हैं देखिए जी, मुदस्सर जट साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। अगर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस लाइव चैट पर थ्रो इन कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0121-682-8142 पर, दैट्स 0121-682-8142 पर। इसके अलावा आप हमें देख सकते हैं फेसबुक लाइव पर, जैसा कि अभी आप प्रोग्राम लाइव चल रहा है। हमें सुनने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.आपकीआवाज़.co.uk पर, रेडियो गार्डन ऐप पर, हिंदी रेडियो ऑनलाइन ऐप पर, और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं
ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी। तो बहुत मज़ा आ रहा है इनसे बातें करके, और हमारा टाइम इतनी जल्दी से गुजर गया है कि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो है ना वो दाखिल हो रहे हैं। तो लेकिन हमारी और बहुत सारी बातें भी रह गई हैं जो करने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी मदर्स को बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हैं और इंफॉर्मेशन भी दी है कि स्कूल के साथ कैसे ख़ास तौर पे इंटैक्ट रहना चाहिए बच्चों की जो उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए, यानी कि उनकी अगर बेस अच्छी होगी तो वो फिर सेकेंडरी स्कूल में और आगे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और ये मदर्स के लिए बहुत बड़ी डेडिकेशन होगी कि उनके बच्चे जो हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, वो कहते हैं ना कि एक काम है, लेकिन इसका रिवॉर्ड नहीं है। लेकिन चलिए हम अपनी मेहमान की तरफ वापस चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरी लम्हात में वो इसको कैसे अपनी कन्वर्सेशन को सम अप करना चाहेंगी। और इसके अलावा फिर जो हम आपको थोड़ी देर में आइंदा हफ्ते के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वापस चलते हैं जी इरम के पास। जी इरम, तो क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम 8:30 बजे तक होता है, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 8:22 हो चुके हैं। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपकी बातें माशाल्लाह से इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंफॉर्मेटिव हैं कि वो दिल चाहता है कि सुनते ही चले जाएं और उस पर प्रोग्राम होता चला जाए। तो आप मुझे थोड़ा सा ना इसको सम अप करें अपनी कन्वर्सेशन को, कि जाते जाते आप कैसे कहेंगी कि बच्चों के लिए एक अच्छी मदद तो होती हैं सभी, लेकिन उनकी एजुकेशन के सिलसिले में और बाकी सिलसिले में लेकर कैसे आप इसको वाइंड अप कैसे करेंगे? मैं बहुत से पेरेंट्स, बहुत सी चीज़ें जो मैंने की, जो मुझे ठीक लगी मैंने की, और बहुत से पेरेंट्स वो करते हैं, बहुत से पेरेंट्स वो नहीं करते और डिफरेंट तरीके से चलते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में भी कहा था देयर इज़ नो राइट, क्या हर किसी ने एग्जैक्टली देयर इज़ नो राइट एंड देयर इज़ नो रॉन्ग। आपने देखना है कि you have to make this conscious decision that you will stay involved, okay, or you will respect yourself and the child. ठीक है, आप अपने आप को भी इस तरह अब्यूज ना करें कि आप इतना ज़्यादा हर काम करें, अपने आप को इतना बर्डन कर दें कि आप उनकी पोजीशन नहीं समझ सकते। फिर अगर आप ओवर हैं, ओवर एक्सर्टेड हैं, ठीक है, आप अपने चैलेंजेस से फिर बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ एज अ पर्सन, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। आप मैंने पहले भी कहा था कि जो माँ का रोल होता है वो एक बैकबोन का रोल होता है, ठीक है। चाहे आपके हस्बैंड वो जॉब पे जा रहे हैं, करियर चेंज कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग होती है ज़्यादा, इन वो भी एक अंडर प्रेशर ही होती है ना कि उन्होंने सारी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। बिल्कुल, और उनको भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि घर में एक प्राइमरी केयरटेकर, एक मदर मौजूद है। उनको नहीं सोचना पड़ता कि घर का काम होगा, बच्चे पिक हुए होंगे कि नहीं, बच्चों बीमार हैं, उनका ख्याल रखा क्या होगा, फ्री माइंड से अपना काम बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो आप मतलब वो जो वर्किंग वुमेन का दूसरा होता है, हम कहते हैं स्टे एट होम मॉम्स कहते हैं या हाउस वाइफ कहते हैं, ठीक है। तो होम मेकर्स, वो बेसिकली होम मेकर का रोल बहुत बड़ा होता है, वो एक छोटा रोल नहीं होता। और मैंने जॉब भी की है, जाहिर है मैंने करियर भी किया। मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी जब मतलब मदर और इस तरह जब घर रहना शुरू किया तो मैं बहुत से लोगों को सुगत कहती थी कि आई डिड नॉट फाइंड दैट चैलेंजिंग। वो जॉब थी, मैंने उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज में उनके टाइम लाइन्स पे उनके साथ काम करना होता था, ठीक है। फिर मैं बाद में एज अ मैनेजर काम कर रही थी। नहीं, दैट वाज नॉट। आपके स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, आप एडल्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस ने बाउंड्रीज इंप्लीमेंट कर दी हैं। ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज मोर चैलेंजिंग। घर में इस तरह इतने लोगों की सपोर्ट बनना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कभी भी कोई भी ऑफिस में आके आपसे जिद नहीं करता, मतलब बहुत कम मतलब होता है। अगर कहीं ऑफिस में कोई बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं तो उनको रीअसर्ट किया जाता है। आपके पास एक HR के पास आप जाते हैं, बहुत सी चीज़ें, कोई इश्यूज होते हैं, एड्रेस होते हैं, एड्रेस कर लिए जाते हैं ऑफिस में। लेकिन जब आप घर में होते हैं और आप बच्चे रेस कर रहे हैं, आपने बाउंड्रीज होती क्या हैं बच्चों को सिखाना है, खुद समझना है। बच्चा कभी भी बीमार है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिद करेगा, वो ये नहीं समझ सकता कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है या बहुत सी चीज़ें, जैसे आप ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। सही। लेकिन ये जो घर में माँ का या होम मेकर का या सपोर्ट सिस्टम एक फैमिली का आप बनते हैं, फुल बैकबोन बनते हैं, उसमें 24/7 है, कोई संडे नहीं है। बिल्कुल, आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। मेरी किसी बात से अगर आपको ये लगा कि नहीं यू आर नॉट डूइंग इनफ, तो आई एम सो सॉरी, यू आर डूइंग मोर देन इनफ ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हर जगह हर रोल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो वो आप
कॉन्शियस डिसीजन करें कि हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं हमने उसको बेहतरीन तरीके से करना है, उसके लिए बेहतर एविडेंस ढूंढने हैं और हम अपने आप को भी रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे को भी करेंगे और हमने उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ों के लिए, चाहे वो उनकी लर्निंग क्राफ्ट्स हैं, कुछ भी वो करना चाहते हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मतलब कोशा रहेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो बहुत सकता। शुक्रिया इरम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज हमारे प्रोग्राम में दी है। आई एम श्योर कि जो मदर्स हमें फार एंड नियर जहाँ से भी हमें सुन रही होंगी, दूर दराज से, यूके से, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से, तो उन्होंने इससे बहुत सारी जो है ना वो इंस्पिरेशन ली होगी। हमें बहुत अच्छा लगा इरम आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में भी किसी में हम आपको दावत देंगे, कुछ और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया और थैंक यू जो नीना है- सो मच। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कितना वक्त गुजर गया। आपने मतलब बहुत कंफर्टेबल और बिल्कुल मतलब मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने शुरू में ये इरादा ही आपकी वजह से किया क्योंकि मुझे मालूम था कि हम एक ऐसी डिस्कशन कर सकते हैं जिससे कम्युनिटी में मुख्तलिफ लोग इफेक्टेड हैं और इम्पैक्ट भी होगा। तो आई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यू आर वेरी वेलकम जी। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। बहुत ही जल्दी से आज हमारा 1 घंटा जो है वो गुजर गया है। अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अगला कम्युनिटी टॉक हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ लेकर फिर आएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयर हैं उनको लेकर आएंगे और आजकल के यूथ के जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ट्यून इन रहिएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से और इरम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।